Inheritance. Transmission of different genetic characteristics from generation to generation or from offspring, from forefathers to offspring. Fathers to offspring. Inheritance is also called heredity. Also known as heredity. Okay. Now, inheritance is controlled by DNA. Okay. Now, what is DNA? Yeah. DNA. मैम डीएनए पास नहीं करता कैरेक्टरिस्टिक्स? हाँ, कंट्रोल भी करता है ना, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जाहिर है वो जिस तरीके से जीन उसके ऊपर लगी हुई होंगी उसी तरीके से वो रेप्लिकेट होकर कैरेक्टरिस्टिक्स को पास करेगा, तो वो कंट्रोल ही हो गया उसका। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक acid. Okay, this contains ribose sugar which do not contain oxygen, because that is why it's called deoxy, do not contain oxygen, or we can say 5 carbon sugar, okay, and another thing is the nitrogenous bases, and another thing is the phosphate group, PO4 minus 3 group attached to it. So all of these three things makes the DNA. DNA is basically composed of the arrangement of nucleotides DNA is composed of 4 different types of nucleotides, and all of them contains number 1 5 carbon sugar, phosphate group, and nitrogenous bases, N2 bases. Nitrogenous bases are basically adenine, thymine,
guanine, cytosine. Adenine A, thymine T, guanine G, cytosine C. When we talk about the pairing of these bases, adenine with double bond paired with thymine and guanine with triple bond paired with cytosine. Okay. DNA is also known as double helix structure. DNA is a double helix structure. अच्छा, इसको different तरीके से बता रही हूँ. Double helix structure which has sugar phosphate backbone, phosphate backbone joined with nitrogenous base pairs. Okay, so it's like this simple structure. First, I'm going to draw the simple structure. Sugar phosphate backbone. These are the sugar phosphate backbone, and between this, the nitrogenous bases are there. मैम Yes, मैम ये सेकंड कॉलम में राइबोसोम शुगर जो आपने लिखा है इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? ribose sugar. मैम इसके नीचे Ribose sugar which do not contains oxygen, or we can say that 5 carbon sugar. Okay. अच्छा मैं आप सही. नोट कर रहे हो? मैम नहीं पढ़ रहा था तो वो मेरे ओके ख्याल में ओके. आपने हाँ वो से तो. नहीं लिखा था ना तभी. हम्म. So these are the nitrogenous bases that join the sugar phosphate backbone. Like this, okay, and they are attached by means of single and double and triple bonds, and this will show that which one of these bases are. Where the double bonds adenine and thymine, where the triple bond cytosine and guanine, and their sequencing depends upon different conditions, right? मतलब इनकी सीक्वेंसिंग के लिए जरूरी नहीं कि ये जो मैंने बताई है यही हो. It can be changed. So adenine and thymine, adenine and thymine, adenine and thymine, guanine, cytosine, thymine, adenine, cytosine, guanine. It can be mirror image. Thymine, adenine, cytosine, guanine, adenine, thymine. So we can say that these are the sugar phosphate backbones. Okay, and these are the nitrogenous bases. मैम नाइट्रोजनस बेसिस को हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं. हाँ, न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं
हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजनस बेस पेयर्स जो हैं, दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, बेस पेयर्स मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ओके, सो ओके दिस इज शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है। और जिसे कहा जाए ये है N2 बेसिस। ओके, अच्छा, अब जैसे कहा जाए कि इसमें बेसिकली 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। हाउ द न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉर्म, लेट्स सी। और ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनती कैसे है, ठीक है। पहले तो हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। मैम। हाँ। मैम, ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, इसमें जो हम्म 5 कार्बन शुगर्स होती हैं, ये हम्म किधर चली हम्म जाती हैं? बता रही हूँ ना, न्यूक्लियोटाइड के अंदर ही होती है 5 कार्बन शुगर। देखो, न्यूक्लियोटाइड जो है वो बेसिकली 5 कार्बन शुगर से मिलके बना होता है, ठीक है। ये ये 5 कार्बन शुगर है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 5 एजेस है, 5 कार्बन लगे हुए हैं। और इसके साथ कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस पेयर लगी हुई होती है। एडेनिन हो सकती है, ग्वानिन हो सकती है, साइटोसिन हो सकती है, थाइमीन हो सकती है, ठीक है। और एक जो है वो आपका फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो लगा हुआ होता है, राइट। सो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो टॉप के ऊपर यहाँ पे लग जाता है, सही है। अब ये एक बन गया, फिर इसी तरीके से इसकी मैं लेबलिंग करके तुम्हें दिखा देती हूँ पहले, या अच्छा देखो, ये हो गया एडेनिन, ए लिख दिया मैंने। ये 5 कार्बन शुगर हो गई, ठीक है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन शुगर, गॉट इट। यस। ये है 5 कार्बन शुगर हो गई। और ये हो गया फॉस्फेट ग्रुप, PO4 माइनस। ओके, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ठीक है, जिसमें एडेनिन लगी हुई है। अब जो है, अब मैं दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाऊंगी जिसमें थाइमीन लगा दूंगी। समझ आई बात। यस मैम, तो ये मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड? ये मिलके जो है शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनाएंगे। अच्छा। जो ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनेगी तो दूसरे से जो है, जब नाइट्रोजनस बेसिस एक दूसरे के सामने आएंगी तो जब वो पेयरिंग करेंगी तो उससे जो है डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा। अभी मैं बना के भी मैम, दिखाऊंगी। तो हाँ, ये जो एडेनिन के पीछे ये पूरी शुगर फॉस्फेट बैकबोन है? ये जुड़ती चली जाएंगी तो ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनाती जाएंगी, साथ में ओके। नाइट्रोजनस बेसिस जो होंगी वो भी लगती चली जाएंगी, ठीक है। ओके। आप समझ आया। यस हम्म मैम। ये देखो, ये जो है ये ऐसे ऊपर गया, और इसी तरीके से इसका भी फॉस्फेट लिंकेज जो है वो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो लग जाएगा। इसको मैं लेबल अब नहीं करूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस बेस को लेबल कर रही हूँ, ठीक है बेटा। ओके। ओके, ठीक है, ये हो जाएगा थायमीन, सही है, मैंने इसको थायमीन का नाम दे दिया। अच्छा, फिर उसके बाद अब नेक्स्ट जो है वो मैं बना लेती हूँ ग्वानिन, या कोई भी बना लो। हम्म ठीक है, 5 कार्बन शुगर सेम वही वाली होगी, ये देखो, ठीक है, इस तरह करके ये हो गई। और इसके साथ जो है ना न्यूक्लियोटाइड लग जाएगा, ठीक है। फर्ज करो मैंने यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड इस बार जो लिया वो आपका ले लिया ग्वानिन, ठीक है, तभी डिफरेंट कलर बता रही हूँ, सही है। और नाइट्रोजनस बेस पेयर के साथ ही दूसरी तरफ जो है वो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो मैंने अटैच कर दिया, सही है। और जनाब ये आपका रेडी हो गया एक और न्यूक्लियोटाइड। अब मैंने इसको नाम दे दिया ग्वानिन का, सही है। तो यस। नाइट्रोजनस बेस पेयर जो है वो जी यहाँ लिख दूंगी। फिर चौथा वाला जो होगा वो साइटोसिन होगा, जाहिर है। बचा हुआ कौन सा है, बच गया, अब साइटोसिन ही बचा है, ठीक है ना। यस। ये ऐसे और ये ऐसे, ये 5 कार्बन शुगर आ गई। अब गुआनिन के साथ बजाय लग जाएगी साइटोसिन, तो साइटोसिन हम ब्लू से बना लेते हैं। यस, ये लो भाई, ये साइटोसिन बन गई। और वही सेम स्ट्रक्चर जो है उसका फॉस्फेट लिंकेज का, वो लगा दिया, फॉस्फेट ग्रुप इधर लगा दिया, ठीक है। और इसका बॉन्ड बना दिया इधर से, राइट। इसका नाम मैंने साइटोसिन रख दिया, सी।
चलो भाई ये भी हो गया। अच्छा ये समझ आ गया ना, 4 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स हैं, ठीक है। और इसमें ये सारे के सारे क्या हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, सही है। ये सारे के सारे क्या हैं, यस। न्यूक्लियोटाइड्स हैं। देखो मैंने ये लिख भी दिया। अब मैं, लेट मी डिवाइड द पेज। यस। अब मैं बनाऊंगी कि ये जुड़ते किस तरीके से हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन कैसे बनती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा रफ करके बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि बैलेंसिंग पे जाऊंगी ना, तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। इट्स लाइक दिस, ठीक है। ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन है और ये नाइट्रोजनस बेस है। फॉर एग्जांपल एडेनिन यहाँ लग गई, ये है फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन। ये जो थर्ड कार्बन है इससे दूसरा फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड आके अटैच होगा। बात समझ आई। हमेशा थर्ड से करेगा। हाँ ये थर्ड पे अटैच होगा, हर जगह पे। फर्स्ट करो थायमीन आ गई, फिर यहाँ से फिर थर्ड के ऊपर एक और फॉस्फेट ग्रुप आके लग जाएगा, और वो शुगर यानी न्यूक्लियोटाइड पूरा आके लग जाएगा। ये देखो ये न्यूक्लियोटाइड ऐसे करके अटैच हो गया, और ये यहाँ पे इसमें लगा दिया, फर्स्ट करो साइटोसिन, फिर थर्ड कार्बन के ऊपर फिर एक और न्यूक्लियोटाइड आके लग जाएगा, और ये लग गया जनाब गुआनिन का। जरूरी नहीं गुआनिन का, साइटोसिन का भी दोबारा लग सकता है, लेकिन क्योंकि मुझे यस। सारे दिखाने हैं तो इस तरीके से। अब ये फिर दोबारा से मैंने इसको ले गई, और भाई ये एक और थायमीन का कहीं से आ गया न्यूक्लियोटाइड, सही है। तो ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो है वो बनती चली गई, ठीक है। थर्ड कार्बन पे लग गई। ओके। अच्छा ये शुरू हो रही है फिफ्थ कार्बन पे और एंड हो रही है थर्ड कार्बन पे। बात समझ आई। यस हाँ। ठीक है। 5 से 3 डायरेक्शन है इसकी, 5 to 3 डायरेक्शन है, 5 से 3 पे एंड हो रही है। अब इसके साथ नाइट्रोजनस बेस पेयर्स के ही का अटैच होना बहुत जरूरी है, एडेनिन का थायमीन के साथ। अब चूंकि इसकी जो डायरेक्शन है न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजनस बेस पेयर की, वो जो है टुवर्ड्स राइट साइड है। और यस। राइट साइड पे अगर मैं इसको पेयर कर दूं एज इट इज, उठा के इधर थाइमीन को, तो वो तो एडेनिन के साथ किसी हाल से भी पेयर नहीं करेगी। तो लिहाजा मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको फ्लिप करना पड़ेगा। तो फ्लिप करने के लिए पहले तो ये फिर इस तरीके से लगना शुरू होगी, ये थाइमीन लगा, और ये यहाँ पे, ठीक है। इस तरह करके उल्टा लग गया। अब थाइमीन के साथ जो है यहाँ पे क्या लगेगी, डेफिनेटली एडेनिन लगेगी, डबल बॉन्ड, है ना। और इसका यस जो हाँ। है, इसका जैसे कहा जाए कि थर्ड कार्बन जो होगा वो फॉस्फेट के पास बिल्कुल आना चाहिए, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके बना देते हैं, ठीक है ना। यस। ये आपका ये थर्ड कार्बन के साथ इधर लग गया, और ये देखो ये जो है ये इसके साथ एडेनिन लग गई, डबल बॉन्ड, समझ आ गया ना बात। और ये देखो ये, यस हाँ। ठीक है। अब ये यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा नीचे आके इसके साथ ये लग गया एक और, ठीक है। और ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन तुम समझ जाओ, ये आपका गुआनीन लग गया, सही है ना। और इसी तरीके यस से हाँ। यहाँ पे अब ये नीचे आएगा, ये थर्ड कार्बन के साथ इधर ये एक और न्यूक्लियोटाइड लग गया, ये ऐसे करके, सही है, उल्टा हो गई, सही है, गुआनीन है। अब ट्रिपल बॉन्ड इसके साथ ये साइटोसिन लग जाएगा, गॉट इट। और इस तरह करके ये पूरी जो है ना डबल शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनेगी, डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर बन रहा है, गॉट इट। अच्छा अब देखो ये यहाँ यस। पे जो है ये ऐसे करके एक और जैसे कहा जाए कि न्यूक्लियोटाइड आके लग गया, सही है, ऐसे करके, ठीक है। और इधर की तरफ ये एडेनिन जो है ये इसके साथ ज्वाइन हो गया डबल बॉन्ड के साथ, सही है। सो दैट्स हाउ। यस। अब इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, इसकी है 3 से, और ये 5 की तरफ जा रहा है कि नहीं है, यस हाँ। 3 to 5 यस। की तरफ जा रहा है। तो इसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, एंटी क्लॉकवाइज, 3 to 5 डायरेक्शन, ठीक है। वो हुंस रूल पढ़ा है तुमने, थम्स अप एंड थम्स डाउन वाला जो होता है, तो ये वाला जो है ये नो। थम्स अप है, गॉट इट। और ये वाला जो है ये थम्स डाउन। थम्स डाउन हम कैसे बनाए भाई, हाँ हम कोशिश करते हैं। हाँ हमसे थम्स डाउन नहीं बन रहा भाई, ठीक है। सो वो तुम समझ जाओ, सही है। सो थम्स अप एंड यस थम्स हाँ। डाउन, ओके। सो लाइक दिस ना, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। तो दैट्स हाउ, ये जो चीज है ना जिसको मैं अब कलर कर रही हूँ, ये है शुगर फॉस्फेट बैकबोन।
ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन ये वाली बन रही है। यस। सही है। इसको हम थोड़ा सा और थिक वाले पे ले लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी कलरिंग हो जाए। ये नाइट्रोजनस बेस पेयर एक दूसरे के साथ जो जुड़ रही हैं फॉस्फेट लिंकेज के साथ, ये सारी शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन, और इसको एक दूसरे को जोड़ कौन रहा है? नाइट्रोजनस बेस पेयर जोड़ रही है। ये देखो। मैम इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है ना, जो आपने पीछे डायग्राम बनाई थी वैसे ही बन जाता है ना मिलके ये। हाँ हाँ, वो जो सिंपल फॉर्म की जो बनाई थी ना मैंने, यस मैम, पीछे हाँ ओके वो मैम। अनट्विस्टेड फॉर्म की। ये देखो ये वाली कह रहे हो ना? ये वाली जो मैंने लेबल की है, दिस वन। यस मैम, हाँ ये हाँ हाँ हाँ, ये जो है ये बेसिकली सिंपल रूल है। ये जो ये वाला जो पोर्शन है ना बेटा, ये देखो जिसको मैं अभी कलर कर रही हूँ, ये जो है, ये जो है, ये पूरा ये शुगर फॉस्फेट, ये जो है ना, ये 5 कार्बन शुगर और फॉस्फेट लिंकेज है। यस ठीक है, इनके अंदर 5 कार्बन शुगर और फॉस्फेट है, और नाइट्रोजनस बेस पेयर ये मैम, सारे के तभी सारे। शुगर फॉस्फेट कहते हैं। हाँ, इसीलिए कहते हैं शुगर फॉस्फेट वेल। यहाँ पे इसके अंदर जो है कौन से वाले लिंक कौन से वाले स्ट्रक्चर्स मौजूद है? वो ये वाले स्ट्रक्चर्स मौजूद है। ये देखो ये वाले, समझ आ गई? यस मैम। आप समझ आई? ये इस तरह करके पूरा ये चलता चला जाएगा, और इधर ये कैसा होगा? ये उल्टा होगा ऐसा, ये उल्टा चल रहा है। समझ आ गई ना? इस तरह करके, और यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस पे इसके साथ लगी है। अब चूंकि ये बेसिकली ये जो जिस तरीके का मैंने ये स्ट्रक्चर तुम्हें बना के दिखाया है नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, ये वाला, ये बेसिकली बच्चों को ए लेवल्स में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं बच्चों को ओ लेवल्स के अंदर भी इसको बताती हूँ, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट के बच्चों को कंसेप्ट का पता होना चाहिए कि फ्रॉम वेयर दे कम्स एंड हाउ दे फॉर्म ना। तो जब ये पता होगा कि शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो है वो कैसी होती है, तो इजी टू अंडरस्टैंड कि अब ये ट्विस्ट स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करेगा, डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब हम ये इसका देखेंगे कि डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से फॉर्म होता है। बेसिकली होता ये है कि ये जिसे कहा जाए कि बना के ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, ये सीधा स्ट्रक्चर है। ये बेसिकली क्या होता है? डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर इस तरह फॉर्म होता है कि ये वाली जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है, ये ऑपोजिट वाली नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में इसमें वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स जो होती हैं वो हो जाती हैं। ओके, इस तरह करके इन दो के दरमियान ना, यहाँ पे क्या है? वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स है। यहाँ पे है वीक H2 बॉन्डिंग्स, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या करते हैं कि ये एक दूसरे को फिर घसीटते हैं अपनी तरफ, तो ट्विस्टिंग आ जाती है। ट्विस्ट कैसे होगा? क्या ये इसको अपनी तरफ घसीट रहा होगा तो इट गेट ट्विस्ट लाइक यस मैम। दिस। ये अपनी तरफ इस यस। डायरेक्शन में घसीट रहा होगा तो इट ट्विस्ट लाइक दिस। ये इधर से अपनी इस डायरेक्शन में घसीट रहा है तो इट ट्विस्ट लाइक दिस। सो इट्स बिकम रोल इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, एंड द होल स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी लुक लाइक दिस। देखो, वो हमने पिछला कलर देख लेते हैं कैसा, ब्लू से बनाया है ना। ओके, सो हम ब्लू कलर सेलेक्ट करते हैं। ओके, तो देखो ये जो है ये बेसिकली कैसा होना शुरू हो जाएगा, ये ऐसे ट्विस्ट करना शुरू कर जाएगा। गॉट इट? यस मैम। ठीक है, मैम, और इसी में से कोई जीन किधर होगी? बताती हूँ। ये ऐसे करके ये ट्विस्ट हो गया। इसमें ओके। नाइट्रोजनस बेस पेयर्स जो हैं वो सारे के सारे, वो भी साथ साथ इसी तरीके से इसी डायरेक्शन के अंदर ट्विस्ट हो रहे हैं। ये इस तरीके से। ठीक है, अब ये देखो, जैसे वो हीलिक्स फॉर्म का जो वो गोल जीना नहीं होता, सीढ़ियां जो चढ़ने वाला होता है, वो बिल्कुल उस तरीके से जो है ना इनकी ट्विस्टिंग होती है। सही है। अब इनके बीच में नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, जो मैंने वहां पे बनाए थे ये वाले जो है एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन। ओके, सो ये जो होते हैं ये इस तरह, गॉट इट? एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन, और इनके दरमियान डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये सब चल रहे होते हैं। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू मेक द बॉन्ड्स एंड ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल बिकॉज इट्स जस्ट द वेस्ट ऑफ टाइम, दैट इज वाई ना।
हाँ अब्दुल्ला, यहाँ तक समझ तो आया है ना? इज इट क्लियर? यस मैम। ओके। ये सारी नाइट्रोजनस बेस पेयर्स एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन जो है वो पेयर हुई है, लेकिन हाइड्रोजन वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनके दरमियान जो है सो शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो है वो ट्विस्ट हो गई, टर्न ओवर हो गई। ठीक है, हेलिक्स फॉर्म का स्ट्रक्चर इसने बना दिया। यस। अच्छा, और सामने से अगर हम इसे देखेंगे तो वही जो एक नॉर्मल डीएनए का स्ट्रक्चर हर जगह आपको टीचर्स और बुक के अंदर बना के दिखा रहे होते हैं और बुक में बना हुआ नजर आता है, वो वाला आगे आ जाएगा। अगर मैं इसका फ्रंटल व्यू देखूंगी, सामने से इधर से देखूंगी, तो इट्स शोज लाइक दिस। ये तो हो गया हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर कंप्लीट। अच्छा अब्दुल्ला, अब तुम क्या पूछ रहे थे कि इसमें जीन कहाँ होगी? यस मैम। पहले हम बनाएंगे इस पे क्रोमेटिन, कि क्रोमेटिन इसमें कैसे फॉर्म होता है, फिर हम दोबारा से डीएनए के स्ट्रक्चर पे जाएंगे। ठीक है? यस। ओके।